Welcome to SLD online class Mathematics 7th standard. Today in this video we are going to learn about supplementary angles and we are going to solve practice set 17 that is based on the supplementary angles and the complementary angles both. What is supplementary angle? If the sum of the measurement of two angles is 180, they are known as the supplementary angle. If the sum of two measurement angle, the sum will be 180. So then it is known as a supplementary angle. कोई भी एंगल का दो सम है, दो एंगल है, उसका आंसर जो है सम जो है 180 है, तो उसको सप्लीमेंटरी एंगल कहते हैं. जैसे कॉम्प्लीमेंटरी एंगल में क्या था, सम ऑफ टू एंगल्स क्या है 90 डिग्री, और यहाँ उसको कॉम्प्लीमेंटरी एंगल कहते हैं. 180 रहेगा तो सप्लीमेंटरी और 90 रहेगा तो कॉम्प्लीमेंटरी एंगल कहते हैं. तो इसके बेसिस पे हम प्रैक्टिस से 17 सॉल्व करेंगे. Supplementary angle. First we will write the note. If the sum of the measure of two angle is 180, they are known as supplementary angle. What? The sum of the two angle, measurement of the two angle will be 180, then it is known as a supplementary angle. Now we will solve practice set 17. First question, write the measure of the supplement of the angle given below. They have given the angle of one angle and they have told find the other angle of the supplement. They have given the supplement of one angle and we have to find the another angle's answer. क्या है, यहाँ पे एक एंगल का दिए हैं और दूसरा एंगल हमें फाइंड आउट करना है. तो सप्ली कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, लेट the measure of the supplementary angle be x degree. Okay, then here we will write x plus 15 equals to 180. 180, the sum of two angle is 180. One angle they have given, another angle they have not given. एक एंगल दिया है, दूसरा एंगल नहीं दिया है, तो दो एंगल का सम क्या है 180. 15 राइट साइड जाएगा, x equals to 180 minus 15, x equals to 165 degree. Our supplementary angle is 165 degree. Now our second question, a degree they have given, a degree दिया है, तो let the measure of the supplementary angle equals to x degree. ओके यहाँ क्या है, a दिया है, तो सप्लीमेंटरी एंगल क्या लेंगे हम लोग, x डिग्री लेंगे. तो यहाँ पे x प्लस a डिग्री इक्वल्स टू 180. ओके, एक एंगल दिया है वो है a डिग्री और दूसरा एंगल नहीं दिया, फाइंड आउट करना है. तो ये एक क्या होगा, राइट हैंड साइड जाएगा, x इक्वल्स टू 180 माइनस a डिग्री. देन आवर आंसर इज x इक्वल्स टू 180 माइनस a इन अ ब्रैकेट डिग्री. क्योंकि 180 को भी डिग्री है, a को भी डिग्री, तो ब्रैकेट में लिख के हम लोग डिग्री ऐसे लिख सकते हैं. तो ये हुआ हमारा सप्लीमेंटरी ऑफ एंगल. कैसे फाइंड आउट किए, यहाँ पे दिया गया है एक एंगल, तो दूसरा एंगल क्या कंसिडर करेंगे हम, x डिग्री करके कंसिडर करेंगे. तो क्या होगा, x प्लस a कहाँ से आया, एक एंगल सेकेंड एंगल का आंसर दिए हैं, equals to 180 degree. X equals to 180 minus A. A will go at the right hand side. Then X equals to 180 minus A in the bracket degree. Our second question is the measure of the sum angle are given below.
use them to make a pairs of complementary and supplementary angle. What they have given here, the pairs of the measurement of the angle, and we have to make the pair. They have given the angles measurement and we are going to make a pair of supplementary and complementary angle. If they have given here measurement of angle B is 60 degree, measurement of angle N is 30 degree, measurement of angle Y is 90 degree, measurement of J equals to 150 degree, measurement of angle D equals to 75 degree, measurement of E equals to 0 degree, measurement of angle F equals to 15 degree, measurement of angle G equals to 120 degree. These are the angles they have given. What is the complementary angle here? If you will add any two angles measurement, if you will get a 90 degree, then it is a complementary angle. And in supplementary angle, if you will add any 2 degrees, and when you will get 180 degree, then it is a supplementary angle. आप यहाँ पे क्या, यहाँ पे मेजरमेंट दिया है एंगल का. अगर आप दो एंगल का जो डिग्री है मेजर करोगे तो आपका 90 डिग्री आएगा, तो वो पेयर में जाएगा, कॉम्प्लीमेंटरी एंगल के पेयर्स में जाएगा. और अगर 180 आएगा तो वो सप्लीमेंटरी एंगल्स के पेयर में जाएगा. 90 आएगा तो कॉम्प्लीमेंटरी में जाएगा, 180 आएगा तो सप्लीमेंटरी एंगल में जाएगा. आपको ऐड करके देखना है. तो मैं यहाँ पहले आंसर में क्या लिखूंगी, कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स का पेयर लिखूंगी. कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स. फर्स्ट पेज here 60 30 I will get 90 degree. Angle measurement of angle B equals to 60 and measurement of angle N equals to 30 degree. This is my first pair. यहाँ क्या है, measurement of angle B 60 degree है और measurement of angle N का 30 degree है. दोनों में ऐड करूँगी तो मुझे 90 आएगा. तो ये मेरा फर्स्ट पेयर हुआ. सेकेंड पेयर, measurement of angle Y 90 degree और measurement of angle E 0 डिग्री. 90 और 0 को मैं ऐड करूंगी तो मुझे 90 आएगा. तो ये क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंटरी एंगल हुआ. थर्ड पेयर, मेजरमेंट ऑफ एंगल D इक्वल्स टू 75 डिग्री और मेजरमेंट ऑफ एंगल F इक्वल्स टू 15 डिग्री. तो 75 और 15 में ऐड करूंगी मुझे 90 आएगा. तो ये क्या है, ये 3 पेयर हुआ कॉम्प्लीमेंटरी एंगल. अभी कोई भी नंबर में ऐड करूंगी तो मुझे 90 डिग्री नहीं आएगा. अभी मैं सप्लीमेंटरी एंगल्स में जाऊंगी. सप्लीमेंटरी एंगल्स. अभी यहाँ पे देखना कौन सा मैं दो नंबर यहाँ पे दो मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऐड करूंगी तो मुझे 180 आएगा. तो पहले यहाँ पे देखो 60 और 120 को मैं ऐड करूंगी तो मुझे 180 आएगा. मेजरमेंट ऑफ एंगल B का 60 है और मेजरमेंट ऑफ एंगल G का 120. ये दोनों ऐड करूंगी तो मुझे क्या आएगा, 180 आएगा. तो मैं यहाँ पे फर्स्ट पेयर लिखूंगी, मेजरमेंट ऑफ एंगल B इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल G इक्वल्स टू 120 डिग्री. देखो 120 और 60 को मैं ऐड करूंगी तो क्या आएगा, 180 आएगा. तो सप्लीमेंटरी एंगल हुआ. अभी यहाँ पे देखो मेजरमेंट ऑफ एंगल N 30 डिग्री है, O और मेजरमेंट ऑफ एंगल J 150 डिग्री है. ये दोनों में ऐड करूंगी तो मुझे 180 आएगा. तो मैं यहाँ पे लिखूंगी मेजरमेंट ऑफ एंगल N इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड measurement of angle J equals to 150. 150 और 30 ऐड करूंगी मुझे 180 आएगा. तो ये क्या हुआ, सप्लीमेंटरी एंगल हुआ. तो यहाँ पे सारे एंगल्स का पेयर बन गया. तो यहाँ पे फिनिश्ड होता है सेकेंड क्वेश्चन. अभी थर्ड क्वेश्चन. Our third question is, in the angle XYZ, measurement of angle Y equals to 90 degree. What kind of a pair do Y angle X and Y Z made? What they have given the triangle XYZ.
and the measurement of angle y is 90 degree and they had told find the pairs. What kind of pair is x and z? y का यहाँ पे डिग्री दिया है मेजरमेंट और पूछे हैं x और z कौन से पेयर हैं, सप्लीमेंटरी एंगल है या फिर कॉम्प्लीमेंटरी एंगल है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 90 डिग्री दिया है, देखो एंगल x y z, एंगल y इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, तो एंगल यहाँ पे y और x और z कौन से पेयर हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये किससे आया 180 डिग्री? प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रायंगल। पूरा ट्रायंगल को मिलाएंगे तो हमें 180 आएगा, तो इसका ये प्रॉपर्टी है। तो एंगल x प्लस एंगल y क्या है 90 डिग्री प्लस एंगल z इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये 90 डिग्री राइट हैंड साइड जाएगा, एंगल x प्लस एंगल z इक्वल्स टू 180 माइनस 90 डिग्री। तो 180 माइनस 90 डिग्री करेंगे तो हमें 90 डिग्री आएगा। x प्लस एंगल z इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखो एंगल x और एंगल z को हम ऐड करेंगे तो 90 डिग्री आएगा। तो कोई भी एनी टू सम इफ टू एंगल्स आर एडेड व्हेन यू विल गेट 90 डिग्री, उसको क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंटरी एंगल कहते हैं। कोई भी दो एंगल हम ऐड करेंगे तो उसको 90 डिग्री आएगा तो क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंटरी एंगल। देयरफॉर एंगल x एंड एंगल z आर complementary angle. Here I finished third question. Our fourth question is the difference between the measures of the two angle of a complementary pair is 40 degree. Find the measure of two angle. What they have given, the difference between the measurement of two angle is 40 degree and we have to find the measurement of the two angle and it is complementary angle. So first let the first angle be x degree and second angle equals to x minus 40 degree. They have given here the difference between the measurement of the two angle of the complementary is 40 degree. दो डिफरेंस क्या है? एंगल, दोनों एंगल का 40 डिग्री है, उसलिए हम सेकेंड में क्या लिए हैं? x माइनस 40 डिग्री करके लिए, क्योंकि डिफरेंस है। अगर वहीं सम आया होता तो यहाँ पे प्लस आता। तो यहाँ पे हमें लिखना है फर्स्ट एंगल x प्लस x माइनस 40 equals to 90 degree. This 90 degree came from, in the question they have given the pairs are the complementary. So this 90 will come. So now we will remove the bracket, x plus x minus 40 equals to 90 degree. Now 1x plus 1x will get 2x minus 40 equals to 90 degree. Now this 40 will go to the right hand side, minus 40 will go to right hand side, and it will become 2x equals to 90 plus 40. Why? The 40 has the minus sign. Now 2x equals to 130. 90 minus 40, you will get 130 degree. Now x equals to 130 by 2. Okay, now we have to divide it. When we will divide it, we will get 65 degree. So our first angle is, therefore first angle
equals to 65 degree. Second angle equals to x minus 40 degree. Then what is our x? 65 minus 40 degree equals to 25 डिग्री. आवर सेकेंड एंगल इज 25 डिग्री. यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, हमें दिया गया सम डिफरेंस बिटवीन टू मेजरमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 40 डिग्री. तो हम फर्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट एंगल को हम x एक्सिस x डिग्री करके कंसिडर करेंगे. सेकेंड एंगल को हम x माइनस 40, क्योंकि यहाँ दिया है डिफरेंट बिटवीन टू एंगल्स ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री इज 40 डिग्री. तो यहाँ पे x माइनस 40 करके कंसिडर करेंगे. तो फर्स्ट क्या है हमारा, x से प्लस x माइनस 40 इक्वल्स टू 90 डिग्री. 90 डिग्री कहाँ से आया, वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर करके क्वेश्चन में दिया गया. अगर सप्लीमेंट्री पेयर करके दिया गया तो 180 आता. तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर दिया गया तो 90 डिग्री आएगा. तो x प्लस x माइनस 40 इक्वल्स टू 90 डिग्री है. x प्लस x 2x माइनस 40 इक्वल्स टू 90 डिग्री आएगा. तो ये 40 राइट हैंड साइड जाएगा. तो 2x इक्वल्स टू 90 डिग्री, यहाँ माइनस 40 था तो यहाँ प्लस 40 डिग्री होगा. तो 2x इक्वल्स टू 130 डिग्री. ये 90 और 40 को ऐड करेंगे तो 130 डिग्री आएगा. तो यहाँ पे 2x क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है. तो जब ये मल्टीप्लिकेशन में है तो हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा. x इक्वल्स टू 130 बाई 2. तो डिवाइड करेंगे तो x इक्वल्स टू 65 डिग्री आएगा. तो हमारा फर्स्ट एंगल क्या है, 65 डिग्री है. सेकेंड एंगल क्या है, x माइनस 40 डिग्री. तो x का वैल्यू क्या है, 65 है ना माइनस 40. तो हम इसको माइनस करेंगे तो 25 आएगा. तो हमारा सेकेंड एंगल क्या है, 25 डिग्री है. See, in the rectangle PTNM is a rectangle. Write the name of the pairs of the supplementary angle. See, they have given the rectangle and we had to write the pairs of the supplementary angle. See, M is 90 degree, P is 90 degree, T is 90 degree and N is 90 degree. M, P, T, N all are 90 degree. When we will multiply P plus T we will get 180 डिग्री. सो यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, रेक्टेंगल दिया गया है और रेक्टेंगल का एक एंगल का मेजरमेंट है 90 डिग्री है. रेक्टेंगल का हर एक एंगल का मेजरमेंट है 90 डिग्री है. तो कोई भी हमें पेयर्स में लिखना है ना, अभी P और T को मल्टीप्लाई ऐड करेंगे तो क्या होगा, 180 डिग्री मिलेगा. N और M को ऐड करेंगे 180 डिग्री मिलेगा. N और P को मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिग्री. तो ऐसे हमें पेयर्स बनाना है. यहाँ पे देखो आंसर, इन रेक्टेंगल all angles are of 90 डिग्री each. क्या है, जो रेक्टेंगल में है ईच एंगल का मेजरमेंट है 90 डिग्री. तो यहाँ पे पेयर्स बनाएंगे तो P एंगल P एंड एंगल T, एंगल M एंड एंगल N, एंगल P एंड एंगल M, एंगल T एंड एंगल N, एंगल P एंड एंगल N, एंगल T एंड एंगल M. तो ये क्या है, P को भी P 90 डिग्री है, T 90 डिग्री है, ऐड करेंगे 180 डिग्री आएगा. तो ऐसे हमारा पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल मिलता है. Our sixth question is, if measurement of angle A equals to 70 degree, what is the measurement of the supplement of the complement of angle A? What they have given the measurement of angle A 70 degree and they had told what will be the measurement of supplement of the complement angle A. supplement find out करना है complement angle of the A का. तो यहाँ कैसे find out करेंगे, complement
ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट क्या है, एंगल ए का 90 डिग्री है, तो यहाँ पे मेजर्स ऑफ एंगल ए क्या है, 70 डिग्री है। ओके, तो यहाँ क्या होगा, 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री होगा तो क्या मिलेगा, 20 डिग्री मिलेगा। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए का क्या है, 20 डिग्री है। 90 माइनस 70 करेंगे तो क्या आएगा, 20 डिग्री आएगा। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए क्या है, 20 डिग्री है। जब 20 डिग्री मिला तो यहाँ पे सप्लीमेंट आपको फाइंड आउट करना है। सप्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री आया। यहाँ पे क्या आया, सप्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू 120 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए क्या है, 20 डिग्री है, तो क्या होगा 180 माइनस 20, तो आपका क्या आंसर आएगा, 160 आएगा। तो देयरफॉर supplement of complement of angle A equals to 160 degree। ये है आंसर। supplement of complement of angle A is 160 degree। See, our seventh question is, if angle A and angle B are supplementary angle and angle B equal, measurement of angle B equals to x plus 20 degree, then what would be measurement of angle A। यहाँ पे सप्लीमेंट एंगल दिया है, A और B सप्लीमेंट एंगल है, और मेजरमेंट ऑफ एंगल B का दिया है x प्लस 20 डिग्री, और बोला गया है मेजरमेंट ऑफ एंगल A का फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ एंगल A प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 डिग्री कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पे दिया गया एंगल A और एंगल B सप्लीमेंटरी एंगल है, तो यहाँ पे 180 आएगा। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल A प्लस B का दे हैव गिवन द आंसर x प्लस 20 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करना है, मेजरमेंट ऑफ एंगल A प्लस x प्लस 20 इक्वल्स टू 20 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखो, ये 20 डिग्री जो है राइट हैंड साइड जाएगा, तो 180 के तो क्या होगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल A प्लस x इक्वल्स टू 180 माइनस 20। जब हम इसे मेजरमेंट ऑफ एंगल A प्लस x इक्वल्स टू 180 माइनस 20 इक्वल्स टू 160 आएगा। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल A इक्वल्स टू ये x, राइट हैंड से हमें मेजरमेंट ऑफ एंगल A फाइंड आउट करना है, तो x क्या होगा, राइट हैंड साइड जाएगा, तो 160 माइनस x डिग्री होगा। तो यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ एंगल A इक्वल्स टू 160 माइनस x डिग्री। तो हमारा आंसर मेजरमेंट ऑफ एंगल A का क्या है, 160 माइनस x डिग्री आएगा। तो यहाँ पे मेरा प्रैक्टिस सेट 17 फिनिश्ड हो रहा है। तो इन माय नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू प्रैक्टिस सेट 18।